हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या फार्मूला है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का, और फिर उस पर हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। लेट्स सी। Suppose that we have given a set of values, that is x naught, corresponding to x naught we have y naught, corresponding to x1 we have y1, corresponding to x2 we have y2, corresponding to x3 we have y3, and corresponding to this one as it is xn we have yn. Very simple. कि हमारे पास x नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y नॉट है, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y1 है, एंड सो ऑन xn के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज yn. देन लेट्स सी. We have denoted this by x and this y. Then we will write here y1 minus y naught, that is second term minus first term. Then and this is known as del y naught, and this is called first forward difference. This is called difference operator, that is del. Same as it is, this one is known as y2 minus y1, and this is known as del y1. y3 minus y2, this is del y2, and so on. y3 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, y4 होगा. then it is y4 minus y3 equals to del y3 and so on. लास्ट टर्म में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे y1 माइनस y नॉट हो रहा है, तो ये क्या होगा yn माइनस y of n minus 1, that is del of y n minus 1, and this is this one, and this is called first forward difference, del y. Next one, we will find second forward difference, that is, and it is denoted as del square y, and this is equivalent to del y1 minus del y naught, and it will be represented as del square y naught. This is del y2 minus del y1, and it is represented as del square y1. This is del y3 minus del y2, and it is represented as del square y2, and so on. And last one is del yn del y of n minus 1 minus del y of n minus 2, and this is del square y of n minus 2, and so on. When we will find third one, then this is known as del qy, and it is known as third forward difference operator. Next one, same, we will find del square y1 minus del square y naught. Del square y1 minus del square y1 minus del square y naught equals to del q y naught, and del square y2 minus del square y1 known as del q y1. Very simple. And so this is our difference table, first difference table, second difference table, and third difference table. Now we will use this to find the formula of Newton's forward interpolation formula. Clear? Then इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि ये जो इंटरवल्स हैं x0 to x1, x1 to x2, x2 to x3, दिस इज नोन एज इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट मीन्स दोनों के बीच का इंटरवल हमेशा इक्वल होगा. इट मीन्स क्या कि x1 minus x0 will be same, x2 minus x1 will be same, and x3 minus x2 will be same. It means suppose that the difference between these two interval, इन दो के बीच का अगर difference h है, it means x1 minus x0 equals to h, तो क्या होगा, x2 minus x1 का difference भी h होगा. Very simple. इसको और हम बेटर लैंग्वेज में लिखते हैं. फर्स्ट वन अगर x नॉट है, लेट्स सी, वेरी सिंपल. फर्स्ट वन इफ इट इज x नॉट, then second one
can be written as x naught plus h. This is x naught plus h equals to x1, and this is x1 plus h, that is x2, and this is x2 plus h equals to x3. Very simple, and so on. And this is x n minus 1 plus h equals to xn. इट मीन्स क्या, सेकेंड टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म से h ज्यादा होगा. इट मीन्स क्या, ऑलवेज दो टर्म के बीच का डिफरेंस जो है सो इक्वल होगा. और जब इक्वी डिस्टेंट हमारा वैल्यू होता है तभी हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते. इट मीन्स क्या, सेट ऑफ वैल्यूज जो हो वो इक्वी डिस्टेंट हो, then we will apply Newton's forward interpolation formula. Now see the formulas. So the formula for Newton's forward interpolation formula is y of p equals to y naught, that is first value, plus p del y naught plus p into p minus 1 upon factorial 2 del square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 upon factorial 3 del square y naught and so on del q y naught and so on, plus लास्ट टर्म क्या होगा, p into p minus 1 p minus 2 up to p minus n minus 1 upon factorial n del n y naught. क्या हो रहा है, जब यहाँ पे हमारा देखिए सेकेंड टर्म है तो p एक कम बार घट रहा है, माइनस हो रहा है. यहाँ पे क्या है, थर्ड, जब हम थर्ड पे जा रहे हैं तो तो क्या हो रहा है, p into p minus 1 by factorial 2, यहाँ 2 है तो ये 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है. इट मीन्स क्या कि अगर यहाँ पे n टाइम्स n फैक्टोरियल लिखा है तो n से एक कम बार तक हम यहाँ पे घटाएंगे. वेरी सिंपल. तो ये कहाँ तक घटेगा, p माइनस n माइनस 1 तक हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर यहाँ क्या मिलेगा, डेल n y नॉट. मीन्स nth टर्म का वैल्यू ये मिल जाएगा. इस तरीके से जब थर्ड टर्म की वैल्यू हम लिख रहे हैं, फोर्थ टर्म की वैल्यू लिख रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है. वेरी सिंपल. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. p का वैल्यू क्या है, p यहाँ से मिलता है x इक्वल्स टू x नॉट प्लस p इंटू h. x का वैल्यू क्या होगा, x नॉट प्लस p इंटू h होगा. ऐसा क्यों होगा, क्या हमने देखा था x नॉट x1 x2 x3 कैसे बढ़ रहा था. अगर x नॉट है तो x1 क्या होता है, x1 इज x नॉट प्लस h. लेट्स सी, x1 इक्वल्स टू x नॉट प्लस h एंड x2 इक्वल्स टू x1 प्लस h. इस x2 को क्या लिख सकते हो, x1 की जगह पे अगर आप x1 की वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, x नॉट प्लस h, दैट इज x नॉट प्लस 2h. वेरी सिंपल. x2 की वैल्यू. इसी तरीके से व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x3, देन x3 इक्वल्स टू इसका जस्ट बिफोर वाली वैल्यू x2 प्लस h, और x2 की वैल्यू अगर हमने यहां से लिख दिया तो क्या मिला, x नॉट प्लस 2 into h प्लस h, दैट इज x नॉट प्लस 3h. तो क्या मिल रहा है, x का वैल्यू x नॉट प्लस सम टाइम्स h. तो हमने क्या बोला, जो टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज p. सो x इक्वल्स टू x नॉट प्लस p इंटू h, और जिसकी वैल्यू के लिए आप पूछेगा p का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. क्लियर है. अब नाम से ही पता है कि क्या है फॉर्मूला, फॉरवर्ड मीन्स जो इसमें जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो वैसा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो हमारे टेबल के बिगिनिंग में लाई कर रहा हो. क्लियर है, जो हमारे टेबल के बिगिनिंग में लाई कर रहा हो, और अगर वो वैल्यू एंड में लाई करेगा तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. वेरी सिंपल. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं. लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऑन न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला. जस्ट सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल गिव्स द डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स ऑफ द विजिबल हॉरिजन फॉर द गिवन हाइट्स इन फीट above the earth surface. इसमें रिलेशन गिवन है, हाइट गिवन है 100, 150, 200, 250, 300, 350 and 400, and corresponding to this distance is given 10.63, 13.03, 15.04, 16.81, 18.42, 19.90 and 21.27. वेरी सिंपल. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला से ये जो है सो किसके लिए कैलकुलेट करना है कि फाइंड द वैल्यूज of y, find the values of y when x equals to 218 feet, when x equals to 218 feet. इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें
कैलकुलेट करना है 218 फीट के लिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये इक्विडिस्टेंट है, क्या हम इस पे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि समटाइम्स स्टूडेंट डेटा देखते ही न्यूटन्स फॉरवर्ड लगाता है या बैकवर्ड लगाता है। तो पहले ये देखना है कि क्या न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ये इक्विडिस्टेंट, ये वैल्यू इक्विडिस्टेंट है या नहीं। 100 से 150 का डिफरेंस 50, यहाँ पे 150 से 200 का डिफरेंस 50 मीन्स इन सब में x वाली वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज सेम है, दैट इज 50 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? इट मींस क्या कि नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम टेबल बना लें। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा क्या मिलेगा, दिस इज डेल y। क्या हम y1 माइनस y0 सब्ट्रैक्ट करें, 3 माइनस 3 0, 10 minus 6 4, and this is 2, that is 2.40. very simple, 2.40. next one subtract 15.04 minus this one, this is 1 0 2.01, this is 7 और ये 1.77 1 6 1 8 0.48 and this is 7 12 minus 9 3 and 0, this is 1. वेरी सिंपल। हमने सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया है, मीन्स 13.03 minus 10.63, so this is 2.40. ये वैल्यू 15.04 minus 13.03, तो ये वैल्यू 2.01। सेम एज इट इज हम आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज डेल स्क्वायर y मीन्स 2.01 minus 2.40, तो क्या मिलेगा ये वैल्यू, दिस इज 1 minus 0 1, 10 minus 4 6, 0. सही है 1 4 6, that is minus 0.39, सॉरी ये minus 0.39 मिलेगा। नेक्स्ट वन सब्ट्रैक्ट दिस 1.77 minus 2.01 4, दिस इज 0.24 और ये माइनस होगा बिकॉज यहां से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज 1.61 माइनस 0.16, दिस इज 0.48, थ्री 5 is 4 1 और ये 1 minus 1.13 और ये वैल्यू यहां से सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस मिलेगा। सो दिस इज minus 0.39 minus 0.24 minus 0.16 minus 0.13 and this is minus 0.11 1.37, ये वैल्यू 1.48 था तो ये भी माइनस मिलेगा, माइनस। वेरी सिंपल, हमें बस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेल क्यू वाई नॉट, डेल क्यू वाई फिर से सब्ट्रैक्ट कर दें, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा यहाँ पे जब आप ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मीन्स ये 5 ये 1 0.15 and this is 0. again this minus this, so 0.08। नेक्स्ट वन इज, ये कैलकुलेशन के वक्त हमें केयरफुल रहना है कि कोई भी पॉइंट्स गलत नहीं हो। अगर एक भी वैल्यू आपका गलत हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए भले ही आपका सॉल्व करने का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो बट 100% एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज दिस माइनस दिस माइनस माइनस दिस
प्लस, तो ये क्या होगा 0 और ये 1, ये वैल्यू हमारा प्लस मिलेगा, दिस माइनस दिस, माइनस माइनस प्लस एंड 0.24. So value is 0.15, 0.08, 0.03 and 0.02. 08 कुछ पेन में मिस्टेक किया गया. This minus this plus this minus minus, ये वाली वैल्यू हमारा सही था, माइनस 0.16 माइनस ये 0 पॉइंट वैल्यू था. ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस this one means 0.03. This value is 0.03. 0.03 and this one is 0.02. 1.37 में ये कुछ मिस्टेक्स था. This minus this means 1. So this is 0.02. ये हमें ध्यान रखना है सब्ट्रैक्शन के वक्त में कि ये हमारा मिस्टेक्स ना. नेक्स्ट वन del 4y. अगेन सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस, तो ये बड़ा है, माइनस में वैल्यू आएगा 0.07. दिस माइनस दिस माइनस 0.05, दिस माइनस दिस माइनस 0.01. वेरी सिंपल, क्लियर. तो कुछ वैल्यू तक लेके अब हम कैलकुलेट करते हैं. अब देखते हैं क्या हमारा फाइंड करना है x इक्वल्स टू 218 फीट के लिए, ये कैलकुलेट करना है. अब ये कहाँ लाई करता है ये हमें एक बार चेक करना है कि वेर इट लाइज. 218 फीट, इसके आसपास 200 के नियर अबाउट कहाँ लाई करेगा, 200 से 250 के बीच में, मींस 200 के आसपास लाई करेगा. देन दिस इज अवर x नॉट. ये क्या हो जाएगा हमारा x नॉट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा हमारा y नॉट हो जाएगा. इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा del y नॉट. Very simple. This value will be del y naught 1.77. This value will be del square y naught. Very simple. And this value will be del q y naught and this value will be del 4 y naught. तो ये देखना है कि जो वैल्यू पूछ रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है. क्लियर है. तो ये वैल्यू हमारा यहाँ लाई कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग हमने x नॉट और y नॉट को ट्रांसफर कर दिया वहां पे. अगर ये यहाँ लाई कर रहा होता तो ये x नॉट होता, ये y नॉट होता. दिस इज del y नॉट, दिस इज del स्क्वायर y नॉट, दिस इज del q y नॉट एंड दिस इज del 4 y नॉट. तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर दें. वेरी सिंपल. सो चलिए, ये ऊपर वाला हमारा ये वैल्यू मिल गया और अब हम ये मिटा देते हैं. देन फॉर्मूला इज y of p equals to y naught plus p del y naught plus p into p minus 1 by factorial 2 del square y naught plus p into p minus 1 into p minus 2 upon factorial 3 del q y naught. और कहाँ तक जाएगा क्योंकि del 4 तक वैल्यू है, इसके बाद वैल्यू है नहीं. then this is p into p minus 1, p minus 2, p minus 3 and this is p minus 4 upon factorial 4 into del 4 y naught. because del 4 y naught तक ही वैल्यू एग्जिस्ट करता है. अगर इसके आगे भी एग्जिस्ट करता तो हम del 5 तक लिखते. नाउ पुट द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? हमें निकालना क्या है. वी हैव x equals to x naught. So we will find the value of p. So x, we know that x equals to x naught plus p into h. Therefore, p equals to x minus x naught by h. Clear? Calculate क्या करना है वैल्यू 218 पे. तो this is our x. x naught क्या है, इसके corresponding हमने चूज किया था यहाँ पे x naught 200. So this is 200 upon value of h is, that is difference, is 50. So this is 50. So calculate, this is 18 by 50, that is 0.180, that is 5 3 are 50 or 35 6 are 30. So this is the value of 0.56. So
sorry 0.36, 5 3s are 15 and this one. So the value of P is 0.36. अब क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. पुट कीजिए y नॉट की वैल्यू क्या है 15.04 प्लस P दैट इज 0.36 इनटू डेल y नॉट, दिस वन, ये डेल y नॉट की वैल्यू है, सो 1.77 प्लस P into P minus 1 that is 0.36 into 0.36 minus 1 upon factorial 2, and this is del square y naught. Del square y naught that is minus 0.16 plus हमने कैलकुलेट कर लिया P del y naught, this is del square y naught plus P into P minus 1 0.36 into 0.36 minus 1 0.36 minus 2 upon factorial 3 into यहाँ से इसे लिखते हैं इसको प्लस हमने कैलकुलेट किया फैक्टोरियल 2 वाला P into P minus 1 that is 0.36 minus 1 0.36 minus 2 upon factorial 3 into del q y naught. Del q y naught is del square del q y naught means 0.03 plus P into P minus 1 that is 0.36 minus 1 0.36 minus 2 0.36 minus 3 upon factorial 4 and del 4 y naught that is minus 0.01 minus 0.0. अब इसको हमें कैलकुलेट करना है and this will be our answer. So just calculate. First one is 15.04 है प्लस 0.36 into 1.77 को हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या मिलेगा हमें 0.637. ये हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करना है. साइंटिफिक कैलकुलेटर सारे एग्जाम में न्यूमेरिकल मेथड्स में आपका अलाउ होगा. दिस वन थर्ड वैल्यू विल बी यू विल गेट 0.018. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे थर्ड वन इसको कैलकुलेट करेंगे एंड फोर्थ वन इज 0.002. दिस इज 0.002 और फिफ्थ वन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा 0.0004. बस हमें एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्या कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत टाइम होता है आपके पास. हमें जल्दबाजी नहीं करना है. अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें आपको 15 to 20 मिनट्स वेस्ट हो जाएंगे. तो भले ही हमारी रफ्तार थोड़ा सा स्लो हो बट हम एक्यूरेट सॉल्व करेंगे. तो ये हमेशा माइंड में रखना है कि हम स्लो सॉल्व करेंगे और एक्यूरेट सॉल्व करेंगे, कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. नाउ व्हेन यू विल ऐड दिस you will get the value of 15.697 और माइल्स में पूछा था तो 15.697 लिख दो या 15 पॉइंट हम इसको राउंड ऑफ में 15.7 भी लिख सकते हैं. वेरी सिंपल. तो हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पे क्वेश्चन किया. हम कुछ और क्वेश्चंस भी इस पे वीडियो लेक्चर्स का सॉल्यूशन बना के मैं डाल दूंगा. तो अगेन स्टूडेंट्स, if you like this video lecture then please like and subscribe and also share with your friends. Thank you from Success Only.